First of all, good afternoon and good day to one and all present here. I am welcoming our today's guest, expert, Mr. Tarang Mistry, and our faculty members and all the students and all other staff members, which are associated directly and indirectly with this webinar. On the behalf of the Mechanical Engineering Department, PIET, Parul University, it gives me immense pleasure to introduce our honorable speaker, Mr. Tarang Mistry, who is basically from Baroda. He has completed his BTech degree from DDIT, Dharamsi Desai University, Nadiad, and currently he is working in Gujarat Narmada Valley Fertilizer and Chemical Limited, GNFC Bharuch. As we all know that GNFC is well-known state public sector of Gujarat government, and he got recruited in it through the campus placement drive through the DDIT University, which is a commendable and remarkable thing. Okay, so in GNFC, he is a shift in charge basically in the nitric acid plant, and as an process engineer, how the things will work out, how he is performing his duties, and how he got the selection into this particular prestigious organization of public sector. So he will share his knowledgeable experience and his ideas, which will be miraculously proved as a boon for the newly emerging and developing candidates, developing students of this Parul University for their healthy career professionals and the direction towards the best achievable goals, and it will be the best suited for them. Okay, so I'm welcoming them again, and the crowd is all yours, Tarang sir. Thank you so much. Thank you for introducing me, sir. So आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सेकंड शिफ्ट पिक करना पड़ रहा है, इसलिए आज मैं मेरा सेमिनार मेरे मैनेजर के पीसी से दे रहा हूँ. इसलिए यू कैन सी मी एज अ दिक्पाल. दिक्पाल सिवदावत इज माय मैनेजर. ओके, सो वी आर गोइंग टू द. एम आई ऑडिबल ना, निशांत सर? Yes, sir, you are perfectly audible. Okay, the role of process engineer. First of all, what is process engineering? Process engineering, that means the understanding the application of the fundamental principles. We converting the raw material, and by using energy, we will converting to useful to society. That we are making that product useful to the society for the industrial purpose. Okay, so first of all, process engineer. I am a chemical engineer, so मेरा पूरा फोकस, पूरा तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत फोकस केमिकल इंजीनियर पे ही रहेगा. और मैं ट्राई करूंगा, मैं सभी ब्रांचेस को कवर करने का ट्राई करूंगा कि इंडस्ट्री में सभी ब्रांचेस कैसे कोरिलेट करके मतलब प्लांट चलाती है. कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी प्लांट एक इंजीनियर से नहीं चलता है, वो ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की वजह से चलता है. लाइक मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर. Okay, so here process engineer can work in petroleum industry. This 6 or 7 fields where every engineers work. It is a wide scope in these 6: petroleum industries, chemical industries, fertilizer industries, polymer industries, pharmaceutical industries. Well known is known as a pharma industry, and the process design industries. So the small introduction of these industries, petroleum industries, also known as the oil industries, includes the global process of extraction, refining, transportation, often by oil tanker and pipeline, and marketing of petroleum products. In our duties, we known ONGC, BPCL, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में आती है. फिर आता है केमिकल इंडस्ट्रीज. द केमिकल इंडस्ट्री, द कंपनी दैट प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल्स. Our GNFC known as the chemical industry and the fertilizer industry too.
But fertilizer sector, we are producing urea and AMP, ammonium nitrophosphate, and any other products like methanol, acetic acid, uh, with ammonia. So that industrial products, so we consider as a chemical. So our first of all, in starting, our company name is GNFC, Gujarat Narmada Fertilizer Limited. That industrial, our first of all, in starting, our company name is GNFC Limited. That industrial, our first of all, in starting, our company name is GNFC Limited. First of all, in starting, our company name is GNFC Limited. Sorry, wait a minute. Initially, my company is known as a fertilizer industry, but after that, we producing more chemicals than the fertilizer. Then my industry name, मतलब GNFC का नाम पड़ा है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड. And next, fertilizer industry. A fertilizer is any material of natural or synthetic origin that is applied to soil or the plant tissues to supply the plant nutrients. Okay, ये सब basic introduction है. You can find it on internet or else you can take a knowledge. But this is a basic introduction, okay? And the polymer industry, fertilizer industry, the Coromandel industry in Baroda, GSFC, our GNFC, okay? Then the polymer industry. Polymer industry is any of the class of the nature synthetic substance compound. Basically, you can say the Reliance is a polymer industry. It produces the polymer more. And then the pharma industry, the pharmaceutical industry discovers, develop, produce, and the market drug or pharmaceutical drugs for the use of the medication to the patient. Okay, you can relate it. The Sun Pharma है, फिर Alembic है, ये सब pharmaceutical industries में आते हैं. Then the last one is the process design industries, where the process designing has been done by doing a material balance and energy balance. So you can say L&T, Linde, Honeywell are the mostly as a process design engineer industries. Sorry. So that was the 6 major parts, and the representative job titles were can process engineer. In any big industries, they have their own boiler. So in a boiler, basically, mechanical engineer work as a process engineer. Okay, so ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि प्रोसेस इंजीनियर सिर्फ केमिकल इंजीनियर ही बन सकता है. फिर representative job for title and area or specialization. So here you can say the process design engineer. What is the process design engineer? एक्चुअली मैंने आपको जो बोला जो मटेरियल बैलेंस है, जो एनर्जी बैलेंस है, केमिकल इंजीनियर डायरेक्टली रिलेट दैट वर्ड्स बिकॉज उनकी स्टडी और उनके करिकुलम में ही आता है. तो प्रोसेस डिजाइन मतलब किसके बाद क्या आएगा, मतलब यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे. तो यूनिट ऑपरेशंस में जो है ड्राइंग है, फिर एब्जॉर्प्शन है, उसका जो इक्विपमेंट डिजाइन होता है, तो उसका मास फ्लो और एनर्जी बैलेंस वो सब करके उसका कुछ वॉल्यूम और उनका डिजाइन कैसा होना चाहिए, वो सब कैलकुलेशंस आते हैं. वो सब प्रोसेस डिजाइन इंजीनियरिंग में आते हैं. वो सब प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर करता है. फिर आते हैं डिजाइनिंग में 2 पार्ट आते हैं. एक तो ये प्रोसेस डिजाइन आता है, फिर मैकेनिकल डिजाइन भी आता है. तो मैकेनिकल डिजाइन में क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स उसका डिजाइन प्रोसेस इंजीनियर करता है. फिर उसका फैब्रिकेशन होता है, मतलब कि आप सोच सकते हो कि एनी एम्प्टी वेसल, तो उसका डायमीटर कितना रहता है, हाइट कितना रहता है, उसका शेप और अंदर क्या प्रोसेस होता है, क्या मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं किस केमिकल को हैंडलिंग करने के लिए. फिर प्रोसेस इंजीनियर कैन आल्सो वर्क एज एन एनवायरमेंटल इंजीनियर बिकॉज
जहाँ पे भी जो भी इंडस्ट्री में जो केमिकल जो प्रोड्यूस होता है, वो हर बार ऐसा नहीं होता कि रॉ मटेरियल आप मिक्स करोगे और आपको सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसमें कभी कभी क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट भी जनरेट होता है। तो बाय प्रोडक्ट होता है वो यूजफुल भी होता है या हार्मफुल भी होता है। और कभी कभी एफ्लुएंट भी जो जनरेट होता है, एफ्लुएंट के दैट मीन के वो आपको कहीं पे डिस्चार्ज करना होता है या फिर आपको उसको ट्रीट करना होता है। तो एफ्लुएंट आप ऐसे ही वो मतलब आप गैस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो वो जो एफ्लुएंट होता है वो डायरेक्टली आप कहीं रिवर के उसमें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उसको फिर आपका गैस भी होता है, वो आप सीधा आप मतलब एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते। तो उसका लिमिट रहता है। तो उसको लिमिट में लाने के लिए मतलब उसका मतलब पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन में उसका मतलब रेंज रहता है। तो उसको उस रेंज में रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और वो सब एनवायरनमेंट इंजीनियर सब डिसाइड करते हैं। ओके। प्लांट प्रोसेस इंजीनियर, प्लांट प्रोसेस इंजीनियर के दैट मीन के मी मैं नाइट्रिक एसिड प्लांट में काम करता हूँ। तो आई एम अ प्रोसेस इंजीनियर। प्रोसेस इंजीनियर क्या क्या करता है, यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही होती है वो तो आप डीसीएस मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है उस पर आप देख सकते हो कि आपके प्लांट में क्या क्या पैरामीटर्स कैसे है। तो उसको कैसे मेंटेन करना रहेगा, वो सब उसमें एज ए प्लांट प्रोसेस इंजीनियर उसका रोल यही रहता है कि जो भी मतलब प्रोसेस चल रहा है उसके पैरामीटर में आता है, प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है। तो कोई भी क्लोज और कन्फाइंड मतलब स्पेस में जो अपना प्लांट होता है वो अपना नाइट्रिक एसिड में बनाता हूँ। तो मैं देख नहीं पाऊंगा कि यहाँ से ये सब यहाँ यहाँ जा रहा है। तो वो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो गैस है इतने टेम्परेचर पे यहाँ से यहाँ गया। तो कहीं कहीं जगह पे मतलब इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं, प्रेशर होता है, फिर ये टेम्परेचर एलिमेंट होता है। तो आई कैन जज के ये गैस है वो यहाँ तक पहुंचा होगा, क्योंकि जो गैस होता है वो हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। तो उसके हैंडलिंग के लिए भी सब प्रोसेस रहता है। तो प्लांट प्रोसेस इंजीनियर मतलब इस तरह से मतलब प्लांट चलाता है। इसलिए फिर आता है प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर। देखो अभी ये नाइट्रिक एसिड है मैं बनाता हूँ मतलब मेरे प्लांट में। तो प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर क्या करेगा कि मैं अपने सर्विस इंजीनियर को कोई भी जॉब देता हूँ। तो मतलब और जो ये प्लांट होते हैं प्रोसेस प्लांट्स उसको मॉनिटर करना होता है। और यहाँ पे फील्ड इंचार्ज रहते हैं, वो हर 2-2 घंटे पे सब रीडिंग नोट डाउन करते हैं और वो प्लांट में जाते हैं। मतलब उसको उनको तो नोन होता है कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे और क्या क्या प्रोसेस उनको ध्यान में रखना है। पर सेफ्टी इंजीनियर क्या करता है कि वो हर कहीं हर प्लांट में घूमता है और कोई भी ह्यूमन काइंड कहीं पे भी घूमता हो और उसके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं मतलब उसको आप बोल सकते हैं पीपीज, वो एक्चुअली प्लांट की प्रीमाइसिस में अंदर जाते हो तो वो रिक्वायर्ड रहता है कि वो आपको पहनना ही है। और कोई भी जॉब जब हम सर्विस ग्रुप को देते हैं तो उसमें भी हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मेंशन करते हैं। तो सेफ्टी इंजीनियर वही देखता है कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। ओके। और ये एनवायरमेंटल वेस्ट मैनेजमेंट, वो तो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लांट में है वेस्ट तो जनरेट होगा ही, बाय प्रोडक्ट जनरेट, उसको ट्रीट करके आप कैसे ट्रीट करोगे, ये भी एक स्कोप है। फिर आप पेट्रोलियम इंजीनियर, अभी मैंने आगे मेंशन किया पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वो पेट्रोलियम इंजीनियर उसका प्रोसेस इंजीनियर एज ए पेट्रोलियम इंजीनियर यू कैन से दैट। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर। ओके, प्रोजेक्ट इंजीनियर मींस के कोई भी नया प्लांट कमीशनिंग कर रहे हो आप, कमीशनिंग मतलब के स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें एक प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए जो उसका मतलब जो भी आपका टेक्नोलॉजी सप्लायर है और मैन्युफैक्चर मतलब इक्विपमेंट सप्लायर है और जो भी है वो सब तो कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है। पर एज एन इंडस्ट्री में कोई एक प्रोजेक्ट इंजीनियर रहता है वो सब इसका ध्यान रखता है। फिर प्रोडक्ट इंजीनियर, जो भी यहाँ पे कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनती है उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है कि इतने कॉन्सेंट्रेशन और ऐसा मतलब प्रोडक्ट चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स और वगैरह होना चाहिए। एज अ फर्टिलाइजर की बात करूँ तो वो प्रोडक्ट इंजीनियर चाहिए। फिर एज अ मटेरियल इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर दैट मीन के कहीं पे भी प्लांट में मैं बोल सकता हूँ कि जो भी इक्विपमेंट है उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब किस मटेरियल का वो बना हुआ चाहिए, क्योंकि वो जो भी आप केमिकल हैंडलिंग करते हो तो उसके लिए स्पेसिफिक मतलब थंब रूल जैसा रहता है कि ये उसके कंपेटेबल मटेरियल है तो इसमें स्टोर होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो वो सब मटेरियल इंजीनियर में आता है। ये सब स्कोप है। फिर ये प्लेसेस ऑफ एम्पावरमेंट जो मैंने आगे डिस्कस किया वो सब में मतलब सब आ ही जाता है।
पर ये फिर से देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स, पेट्रोकेमिकल्स, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक कंपनीज, फिर गवर्नमेंट एजेंसी, जो मैंने आपको बात किया, जो भी कोई भी प्लांट में जो एफ्लुएंट जनरेट हो रहा है या फ्लेयर में से जो आप भी मतलब बाहर जो निकाल रहे हो प्लांट से, वो विद इन अ रेंज होना चाहिए। ये जीपीसीबी और सीपीसीबी क्या है कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। तो जो भी एफ्लुएंट और गैसेस जो एनवायरमेंट में जा रहे हैं, इन्होंने सभी जगह पे अभी यहाँ पे भी जितने भी कंपनीज हैं, दहेज में है कोई भी केमिकल कंपनी होता है, उसमें उन लोग ने ऑनलाइन एनालाइजर लगा दिया, जो उसके रेंज के बाहर भी जाएगा तो उनको डायरेक्ट गांधीनगर वो ऑफिस में उनको पता चल जाता है। इस तरह से ये वर्क करता है। फिर एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसमें भी केमिकल इंजीनियर काम कर सकते हैं। फ्लड फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। Okay, that is the places of the empowerment for process engineer. Then come to the processes for any chemical industries. There are two type of processes in chemical industries: continuous process and the batch process. Mainly, I can say that I am working in a continuous process because a continuous process is a process in which the product comes out without interruption and not in a groups. So, my plant for nitric acid, my raw material is ammonia and air. सो एयर तो एनवायरमेंट से मतलब मिल जाता है, फिर एमोनिया यहाँ पे मदर प्लांट है हमारे जेएनएफसी का एमोनिया प्लांट, वहां से आता है थ्रू अ पंप। सो बाकी तो वो हमारा प्लांट की प्रोसेस है, तो ये कंटिन्यूअसली मतलब चलता ही रहता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है और फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और वो सिर्फ वो प्रोडक्ट सिर्फ थ्रू अ पाइपलाइन वो स्टोरेज एरिया में चला जाता है। फिर आता है मतलब ये बैच प्रोसेस। मोस्टली बैच प्रोसेसेस आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वेयर द रॉ मटेरियल मतलब एक जगह पे इकट्ठा करो, और फिर उसको मतलब जो प्रोसेस रहता है कि टेम्परेचर पैरामीटर जो मेंटेन रखना पड़ता है कि कितने टाइम के लिए, वो आप मेंटेन करो और फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, उसको बैच प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या गुला मिला के आप फिर घर घर में भी देख सकते हैं, जो कुकर में जो आप कुछ भी बनाते हो मतलब मसाला भात बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि सब मसाला डालो, भात डालो, और वो बाद में जो बन जाता है वो आपका प्रोडक्ट जो खाने का। फिर ये एक्चुअली ये सब केमिकल इंजीनियर के लिए है, पर आप एक बार देख लो कि यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेस, process in which the physical changes are not a chemical changes take place, known as unit operations. Example: filtration, evaporation, absorption, distillation, extraction, drying, refrigeration, crushing and screening. सॉरी, ये सब अभी जो टर्म्स में आपको ये बोल रहा हूँ, ये सब एक यूनिट ऑपरेशन है। वो केमिकल इंजीनियर रिलेट कर सकता है, दूसरी ब्रांच में आता है कि नहीं वो पता नहीं मेरे को, पर ये फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और एब्जॉर्प्शन ये एक केमिकल टर्म है। जो भी जगह पे ये यूनिट ऑपरेशन किसी भी इंडस्ट्री में होता है, तो वहां पे जो भी इक्विपमेंट यूज होता है, मैकेनिकल इंजीनियर का यही रोल होता है कि ये इक्विपमेंट वो स्मूथली रन हो। ओके, और ये अब आगे देखते हैं तो यूनिट प्रोसेसेस, प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, कंसीडर अ यूनिट प्रोसेस। दिस इज ये तो पूरे का पूरा केमिकल इंजीनियर्स के लिए है। एग्जांपल: नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन, ये यूनिट प्रोसेस है। अभी देखो, अभी ये सब तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो सब ठीक है। अब देखो, एनी केमिकल इंडस्ट्री हैविंग देयर ओन, उनके पास अपना खुद का बॉयलर होता है, पावर प्लांट होता है। मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, मेनली तो पावर प्लांट हर इंडस्ट्री में नहीं रहता, पर जीएनएफसी वो बड़ा सेक्टर आप बोल सकते हैं। तो वो अपना पावर प्लांट भी है, और छोटी छोटी इंडस्ट्री जो जीआईडीसी होती है वो बेसिकली जीपीसीबी से ही अपना डायरेक्ट पावर ले लेती है। ये ओन पावर प्लांट रखने का पर्पस यही होता है कि आप डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से मतलब पावर लोगे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये अपना खुद का पावर प्लांट हो, और बॉयलर तो आप उसको क्या कहते हैं, एज अ हीट सोर्स आपको जो स्टीम चाहिए होता है वो बॉयलर प्लांट प्रोवाइड करता है।
फिर ये ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, स्टोरेज एरिया एंड फिलिंग एरिया। मेनली ये कहीं पे भी आप बड़ी इंडस्ट्री में देखोगे, इवन रिलायंस, जीएसएफसी, कोरोमंडल, डीसीएम श्रीराम, और यहाँ दहेज में भी आप देखोगे पेट्रोनेट, ये सब इंडस्ट्रीज का ये तो रहता ही हर एक कंपनी। Yes, that equipment used in the chemical industry. Okay, pumps, valves, heat exchangers, columns, compressor and turbine, vessels, cooling tower, vapor absorption, refrigeration system. ओके ये सब कहीं पे भी आप कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस में जाओगे, ये आपको तो कहीं पे भी मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ, ये सब ऑब्जर्वेशन और इसका मतलब नोटेशन सब केमिकल इंजीनियर को करना होता है। और एक्चुअली यहाँ पे जो सर्विस ग्रुप में बोल रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर का रोल आता है, फिर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर का रोल आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रोल आता है, सिविल इंजीनियर का भी रोल आता है। अभी देखो ये पंप्स की ही बात करो, हर इंडस्ट्री में होता है, कोई भी फ्लूइड ट्रांसफर करने के लिए लिक्विड फ्लूइड, तो आप पंप यूज करते हैं। तो पंप को चलाने के लिए मोटर चाहिए होगा, तो मोटर जो होता है वो एज अ लाई करेगा आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, जो पंप होता है वो लाई करेगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, और उसका जब असेंबली और वो सब आता है वो सब मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल वो मेंटेनेंस ग्रुप है, तो ये सब मेंटेन करने का वो मैकेनिकल ग्रुप करेगा। फिर वाल्व आते हैं, वाल्व भी बेसिकली आता है मैकेनिकल में ही। फिर हीट एक्सचेंजर, आगे पढ़ोगे आप, अभी तो इंजीनियरिंग पूरा करने के आपको पता चलेगा कि कितने टाइप्स के हीट एक्सचेंजर आते हैं। फिर कॉलम्स, कॉलम्स भी ट्रे टाइप होता है, पैक टावर होता है। फिर उसमें भी आप देखोगे आगे आगे उसका हाइट, डायामीटर। फिर ये मेन कंप्रेसर एंड टरबाइन, ये क्या होता है कि किसी भी प्लांट का कंप्रेसर बेसिकली यूज फॉर द गैस to compress, to transfer a gas one place to the another place. कंप्रेसर क्या होता है कि कंप्रेस करने के लिए होता है। आप देखोगे पंप होता है वो आप लिक्विड को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हो। ये क्या कंप्रेसर आप बोल सकते हो कि गैस को एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि किसी भी फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए। द लिक्विड ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय डिफरेंशियल प्रेशर। सो कंप्रेसर में आप एयर मतलब मानो कि कोई भी गैस हो उसको कंप्रेस करोगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। फिर टरबाइन, टरबाइन वो ये सब रोटेटरी इक्विपमेंट में आते हैं। ये एक मतलब सेपरेट सब्जेक्ट है, इस पे तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे प्लांट में टोटल सॉरी टोटल 3 कंप्रेसर है, 2 एयर कंप्रेसर और एक नॉक्स कंप्रेसर which is used for in the nitric acid plant, and एक एक्सपांडर है, यू कैन से टरबाइन, टरबाइन एक और स्टीम टरबाइन है, मतलब 2 टरबाइन है। फिर आते हैं वेसल्स। हर एक केमिकल इंडस्ट्री में आप देख रहे हो वेसल तो होने चाहिए, स्टोरेज के लिए वेसल चाहिए, इंटरमीडिएटरी। आप भी किसी भी प्लांट में मतलब कोई भी केमिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, रिएक्शन होता है, फ्लैश ड्रम होता है, वो सब लाई करता है वेसल्स में। फिर कूलिंग टावर, कूलिंग टावर यूज फॉर किसी भी प्रोसेस में कहीं पे आपको कोई भी चीज मतलब फ्लूइड और लिक्विड को ठंडा करना हो तो उसके लिए आपको एक अगेंस्ट में दूसरा फ्लूइड चाहिए होगा। तो मेनली एवरी इंडस्ट्री cooling tower is used for cooling the process gas or the liquid and the vapor absorption refrigeration system। आपको किसी भी लिक्विड और गैस को मतलब जो सराउंडिंग टेम्परेचर रहता है उससे भी कम टेम्परेचर पर ले जाना है, 0 डिग्री मतलब उससे भी कम, माइनस में। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यू कैन यूज। सो utilities in chemical industries for the process for any plant, this is required to run a plant। steam टरबाइन जो हमें ड्रिवन करना है जिससे आप कंप्रेसर को रन कराओगे उसके लिए भी स्टीम चाहिए होगा, और स्टीम कौन प्रोवाइड करता है? बॉयलर डिपार्टमेंट। तो बॉयलर एक प्लांट होता है वहां पे वो स्टीम प्रोवाइड करता है, और आपको एज अ हीट सोर्स कोई भी जो भी चाहिए आपको कहीं पे, ये तो मैंने बोला कि कूलिंग वाटर और चिल्ड वाटर, कहाँ पे आपको सिस्टम में जो प्रोसेस गैसेज या लिक्विड है वो आपको ठंडा करने के लिए जो कूलिंग वाटर और चिलिंग वाटर आप यूज करते हो, ये स्टीम यूज होता है कोई भी एज अ हीटिंग सोर्स।
फिर कूलिंग वाटर, चिल वाटर, पावर, फिर कंप्रेस्ड एयर। कहीं पे भी आप प्रैक्टिकल व्यू में जाओ देखोगे तो कहीं पे भी आपको कोई भी फ्लशिंग या फिर एयर फ्लशिंग वो सब रिक्वायर्ड रहता है। कहीं पे भी क्या होता है कि कन्फाइंड स्पेस रहता है, कहीं पे भी जॉब चल रहा हो तो आपको उसमें उसके काम करने के लिए मतलब कन्फाइंड स्पेस में जाना हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो, वो मतलब अपने को आदमी वहाँ पे काम कर सके उतना मतलब ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ पे एयर चाहिए होगा। तो ये कॉम्प्रेस एयर तो उसी के लिए यूज होता है, फ्लशिंग के लिए यूज होता है। फिर इंस्ट्रूमेंट एयर, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट एयर, इंस्ट्रूमेंट एयर यूज होता है कोई भी किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में। कंट्रोल वाल्व होते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डीसीएस से। तो वो ओपन क्लोज होगा वो न्यूमेटिकली, तो उसके लिए जो चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट एयर चाहिए जिससे वो रन होता। फिर ये डीएम वाटर, डीएम वाटर ऑल्सो यूज इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर एज अ रो मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने नाइट्रिक एसिड प्लांट की बात करूँ तो डीएम वाटर यूज होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द नॉक्स, नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस। फिर सर्विस ग्रुप, एज आई मेंशन बिफोर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्पेक्शन इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर। जो मैंने देखा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हर प्लांट में कोई एक इंजीनियर प्लांट नहीं चला सकता, ये सभी अपने अलग अलग ग्रुप होता है। आपको पावर चाहिए होगा, मोटर जो ड्रिवन होता है उसका मेंटेनेंस है, फिर हर एक प्लांट में रात को लाइटिंग वगैरह भी चाहिए होता है तो वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के डिपार्टमेंट में लाई करता है। फिर किसी भी केमिकल और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन जिस भी लाइन से होता है, और जो इक्विपमेंट भी हम यूज करते हैं, इवन कंप्रेसर एंड टरबाइन ऑल्सो मेंटेन बाय मैकेनिकल इंजीनियर। वो एक अलग डिपार्टमेंट रहता है सीएमजी डिपार्टमेंट, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर ही वहाँ पे काम करते हैं। और एक अपना प्लांट का एक अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो वाल होता है, फिर पंप होता है, इक्विपमेंट होता है, वो सब जो मेंटेन करने का काम करता है वो इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर करता है। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर मैंने आपको बताया कि कोई भी इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट्स, टीआई होता है टेम्परेचर एलिमेंट, फिर पीटी होता है प्रेशर ट्रांसमीटर, और पीटी मतलब मान सकते पीटी आपको शो करेगा सिस्टम प्रेशर कितना है, टीआई शो करेगा आपका टेम्परेचर कितना है। फिर ये मशीन की बात करूँ मैं, मशीन मतलब के टरबाइन और कंप्रेसर, वहाँ पे मशीन में आपके छोटे छोटे पैरामीटर्स लाइक वाइब्रेशंस, टेम्परेचर्स, बियरिंग टेम्परेचर्स, वो सब प्रोसेस इंजीनियर जो ऑब्जर्व करता है, तो वो सब वो डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम पे एक पैनल पे ही सब दिखाता है। तो वो सबके लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी है, तो उसका मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स करते हैं। इंस्पेक्शन इंजीनियर, इंस्पेक्शन इंजीनियर का रोल मेनली तो शटडाउन में आता है, जब प्लांट बंद हो और कहीं पे भी मतलब जो इक्विपमेंट है और वेसल्स है और लाइन है उसका थिकनेस फिटनेस कम हो जाए, मतलब वो मतलब शटडाउन एक रिपोर्ट आता है, कहीं पे भी कोरोजन इरोजन वो सब होता है, वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अपने खुद का मतलब रिपोर्ट बनाता है और सजेस्ट करता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रोसेस डिपार्टमेंट के ये अभी इसको मेंटेन करना पड़ेगा। कहीं पे भी एल्बो हो रहा हो जो फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, फ्लूइड दैट के गैस और लिक्विड आप ले सकते हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इरोजन कोरोजन की वजह से थिकनेस मतलब ये जितना भी पोर्शन जो जिसका थिकनेस कम हुआ है वो बदलना पड़ेगा, तो वो सब इंस्पेक्शन अपने रिपोर्ट में देता है। फिर हमारे यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम है, तो कहीं पे भी कोई भी फ्लैंज जॉइंट्स में से कहाँ पे भी मतलब एयर इंग्रेस हो और उसमें आपका वैक्यूम ब्रेक हो रहा हो, डिजायर वैक्यूम अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि कितनी प्रोसेस होती है मतलब जितने प्रेशर पे होना चाहिए वैक्यूम में सिस्टम होना चाहिए, तो उसी वैक्यूम पे ही ये प्रोसेस चलेगा, तो उसमें वो सब आइडेंटिफिकेशन भी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट देखता है। और सिविल डिपार्टमेंट आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन हो और पंप का इंस्टॉलेशन हो तो ग्रिड विड वो सब है, फिर स्टोरेज एरिया हो, सपोर्ट बफर एरिया हो, वो सब बनाने का काम सिविल डिपार्टमेंट होता है, तो ये सिविल उसके लिए सिविल इंजीनियर होता है। फिर ये प्रोसेस इंजीनियर किसी को भी अपना जॉब देता हो, जॉब मतलब कि किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, किसी भी लाइन का जॉब, और वो जगह काम करने के लिए सेफ हो, उसके लिए एक परमिट, रिटर्न परमिट लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के मैकेनिकल इंजीनियर को बोल दो कि ये काम करना है
और आप डायरेक्ट उसे बोल दो कि करो, ऐसा नहीं चलता। सम रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए ये वर्क परमिट सिस्टम होता है, किसी भी कंपनी में होता है। टू रिड्यूस द रिस्क लेवल in those activities, authorized person given safety work permit. Okay, work permit is nothing but the permission given by a person who is familiar with the work environment. You can say process engineer. वो जो होता है वो जहाँ से जगह पे जिस भी प्लांट में काम करता है वो सभी जगह से फैमिलियर रहता है. Okay, so hazard involved in the work to assure the safety of all the workers involved in the activity. ओके, वर्क परमिट आप दे रहे हो, उसका मतलब कि वो जो भी डिपार्टमेंट को आप इश्यू कर रहे हो वो जहाँ पे काम करेगा वो जगह सेफ है. और वर्क परमिट में मेंशन भी करना होता है कि वो जो पंप है वो किस चीज़ का पंप है. आपके मैं बात करूँ तो अपना WNA और CNA, वीक नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ट्रांसफर करने का पंप है. उसका मैं जो भी जॉब देता हूँ तो उसमें एसिड ड्रॉपलेट्स तो रहेंगे. वो फ्लशिंग मशीन करके देना प्रोसेस डिपार्टमेंट का होता है, पर जब भी वो फ्लैंज लूज करेगा तो उनमें से एसिड आएगा, वो श्योर है. ठीक है, तो उसके लिए वर्क परमिट में मेंशन करना रहता है कि यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक PVC ग्लव्स, फिर ग्लासेस एक्सेट्रा. Types of work permit: old work permit, hot work permit, confined space permit, working at height permit, excavation work permit, and electrical work permit. So ओल्ड वर्क परमिट जहाँ पे आप कहीं पे भी वेल्डिंग और कहीं पे भी हॉटलाइन और मतलब ओल्ड वर्क मतलब वो इजीली काम कर सकता है. आपको मैं आगे दिखाऊंगा एक ओल्ड वर्क परमिट का एग्जांपल. उसमें कितने पॉइंट्स रहते हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं यस या नो में मेंशन करना होता है. वो ओल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट जहाँ पे भी आप मतलब वेल्डिंग वगैरह का काम करते हो तो उसके लिए उसको परमिशन देना होता है कि हॉट वर्क परमिट. वहाँ पे भी कुछ ऐसा गैस अवेलेबल नहीं होगा, फ्लेमेबल गैस अवेलेबल नहीं होगा जिससे मतलब एक्सप्लोजन और वो कुछ हो जाए. फिर कन्फाइंड स्पेस परमिट, जैसे मैंने आगे भी बोला, किसी भी वेसल में वेसल एंट्री लेना हो तो उसके लिए एक परमिट चाहिए. उसको हम कन्फाइंड स्पेस परमिट बोलते हैं, जिसके अंदर आदमी जाके काम कर सके, मेंटेनेंस जॉब कर सके. वर्क एट हाइट परमिट, एज पर द फैक्ट्री रूल्स 2 मीटर 20 फीट उसके ऊपर वाला जो भी जॉब करना हो, मतलब जो भी काम करना हो, उसके लिए वर्क एट हाइट परमिट रिक्वायर्ड होता है. फिर एक्सकेवेशन वर्क परमिट, मतलब कि जहाँ पे भी मतलब एक्सकेवेशन करना हो तो उसके लिए भी परमिट रिक्वायर्ड है कि वहाँ से अंदर से कोई मतलब केमिकल ट्रांसपोर्टेशन वाला लाइन या कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर, और वहाँ पे कर रहे हैं एक्सकेवेशन तो वो सेफ है या नहीं. फिर इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को इश्यू कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे किसी और डिपार्टमेंट को एक जॉब करने के लिए देना है. एज ए एग्जाम्पल, आपको किसी पंप का जॉब देना है तो उसके लिए उसके साथ मतलब मोटर को पावर आइसोलेट करते हैं, वो सब आपको इलेक्ट्रिकल को देना पड़ेगा. क्योंकि जब वो पंप पे जॉब कर रहा होगा मैकेनिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन, तो उस टाइम पे मतलब पंप घूमना नहीं चाहिए, तो उसके लिए मतलब इलेक्ट्रिकल लॉकआउट परमिट रहता है. तो ये GNFC की कोल्ड वर्क परमिट है, आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर, परमिट नंबर रहता है फॉर रिकॉर्ड. फिर देखो ये क्लोरीन टर्नर, कंट्रोल रूम साइड क्लोरीन टर्नर टू बी डिस्कनेक्ट, और ये सब पार्ट रहते हैं जिसको आपको रीड करके उसको ऑथराइज करना होता है कि क्लोरीन टर्नर डिस्कनेक्ट में यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये नोट में मैंने टिक किया हुआ है. फिर आप देख रहे हो ये सब है, वहाँ पे आई वॉशर अवेलेबल है, तो उसके लिए ये मतलब ये आप ऑथराइज करते हो और यहाँ पे सभी पॉइंट्स को आपको मेंशन करना होता है. अभी देखो ये मेरे CNA कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का प्लांट है, इसके सब फोटोग्राफ्स है जो आप देख सकते हो. तो यहाँ पे जो वेपर्स आती है नाइट्रिक एसिड की, प्योर नाइट्रिक, ये कंडेंसर है. यहाँ पे कूलिंग वाटर और चिल वाटर से कंडेंस होता है. आप यहाँ पे ट्यूब में देखोगे तो कूलिंग वाटर और चिल वाटर फ्लो करता है, और बाहर जो शेल साइड रहता है वो रहता है नाइट्रिक एसिड का, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की वेपर रहती है.
तो यहाँ से जो जो टावर में से निकल के जो भी वेपर आती है वो यहाँ पे कंडेंस होती है। और ये सब ग्लास के बने हुए हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के लिए फेवरेबल एमओसी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्लास है, किसी और मेटल में नहीं चलता। आप सीएस कार्बन स्टील यूज करोगे तो वो पिघल जाएगा, इवन कॉपर भी पिघल जाता है नाइट्रिक एसिड के लिए। इसके लिए यहाँ पे ग्लास के इक्विपमेंट यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ये 20K202 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ब्लीचिंग कॉलम है। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में आप देखोगे तो वो इक्विपमेंट के नाम से नहीं जाना जाता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेम प्लांट किसी भी प्लांट में एक या दो से भी ज़्यादा हो, तो ब्लीचिंग कॉलम तो दो तीन मतलब प्लांट में भी आ सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये इवन जीएनएफसी में नाइट्रिक एसिड के 3 प्लांट है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और हर जगह पे ब्लीचिंग टावर तो आएगा ही। तो क्या होता है कि ये सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय नंबर्स, डिजिट्स। तो ये 22K202 लिखा हुआ है, वो इक्विपमेंट का नाम है। और ये ब्लीचिंग कॉलम है, आप नीचे से देख सकते हो कि ब्लीचर नीचे से जाती है, ऊपर से अपना एसिड आता है, और ये पैक टावर है तो ऊपर से नाइट्रिक एसिड आता है, तो उसमें जो फिजिकली डिजोल्व जो नॉक्स है वो निकल जाता है। और नीचे आप देखो तो पानी जैसा प्योर नाइट्रिक एसिड आपको दिखेगा। ये भी ब्लीचिंग कॉलम है, ये CnA2 का है। ये देखोगे आप यहाँ पे जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है वो नाइट्रिक एसिड है, अनब्लीच। जो फिजिकल डिजोल्व होता है वो एसिड यहाँ से निकल जाएगा। आप ये सब फोटोग्राफ्स में देख सकते हो कि ये लाइन है, ये सब फ्लैंज जॉइंट है, वो सब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आएगा। फिर ये वाल है, ये आगे के फोटो में भी देखो आप, ये सब फ्लैंज जॉइंट है प्योर ग्लास की। इसके बीच में गास्केट लगा हुआ आता है, यहाँ पे भी देखोगे ये सब फ्लैंज जॉइंट। फिर देखोगे ये हमारे प्लांट के नाइट्रिक एसिड के मेन कॉलम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम का रीबॉयलर है। रीबॉयलर का काम तो आप आगे पढ़ोगे कि किसी भी फ्लूइड को मतलब गर्म करके उसको, यहाँ पे 2 फेज जनरेट होता है। यहाँ पे हम स्टीम लेके उसको वो मतलब जो भी फ्लूइड होता है उसको गर्म करते हैं, उसका जो वेपर जनरेट होता है वो यहाँ से फिर से कॉलम में जाता है, और बाकी का लिक्विड होता है वो नीचे से निकल जाता है। आप देखोगे यहाँ पे ये सब जॉइंट्स है, ये सब फ्लैंज जॉइंट है, ओके। और उसका मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन MSGL माइल्ड स्टील ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स होता है। कई बार ये सब इक्विपमेंट में लीकेज हो जाते हैं, तो प्लांट बंद करके हैंड ओवर करना पड़ता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट को। और एज अ प्रोसेस इंजीनियर यू आर रिस्पॉन्सिबल, जब भी आप उसको काम करने के लिए परमिट देते हो तो इसमें कोई भी एसिड नहीं होना चाहिए। पूरा मतलब ड्रेन करके, मतलब कोई भी आदमी होगा वो जाके मतलब जो काम कर रहा है टेक्नीशियन, वो यहाँ से फ्लैंज मतलब ओपन करेगा तो वो मतलब इक्विपमेंट पूरा ड्रेन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से एसिड निकला तो इट कॉज एक्सीडेंट। To prevent an accident, so the responsible person is a process engineer. ये देख सकते हो, ये मैंने वेसल का जो मैंने बात किया, ये सब स्टोरेज एरिया है। ये नाइट्रिक एसिड WNA वीक नाइट्रिक एसिड 61.5% जितना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ये उसकी स्टोरेज एरिया है। और इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये 3 टैंक का रहता है SS316। फिर देखो ये पंप एरिया है, ये जो नाइट्रिक एसिड जो बना के ये टैंक में जो स्टोर होता है उससे आपको कहीं पे और पे ट्रांसफर करना होता है, तो पंप का यूज होता है। इसमें ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये है NRV है, ये है वो आइसोलेशन वाल्व है, सिलेंड्रिकल वाल्व। फिर ये है पंप है। फिर ये जो पंप के साथ लगा हुआ है ये उसको मोटर बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइन है जो आप लाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 4 पंप है, ये 11P1 11P4। ये मतलब देखो 11P11 है वो यहाँ से स्टोरेज एरिया से ट्रांसफर करता है IP फिलिंग में, जहाँ पे जो टैंकर फिलिंग और जो नाइट्रिक एसिड है वो दूसरी कंपनी में सेल करते हैं। ये P1911 है वो CNA3 प्लांट के लिए रॉ मटेरियल जो WNA रहता है वो वहाँ के जाता है। 11P4 जो ANP एमोनियम नाइट्रोफॉस्फेट वो प्लांट के लिए नाइट्रिक एसिड जो रॉ मटेरियल है, तो वो एसिड इधर से जाएगा। फिर CNA12 के लिए ये 11P1। सो फोटोग्राफ्स मेनली
आप रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे देखो ये पीजी लगा हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट आता है। ये सीएनए का स्टोरेज एरिया है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये प्योर एल्यूमिनियम का बना हुआ था, इसलिए इसको मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब रखा हुआ है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम रहता है एसएस के मुकाबले। एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील के मुकाबले इसका स्ट्रेंथ कम रहता है। इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम है, और ये सीएनए ट्रांसफरिंग पंप है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाल पीजी, फिर ये जो है वो यहाँ से जो लाइन में जो सीएनए ट्रांसफर होता है उसका एफटी है। एफटी मतलब फ्लो ट्रांसमीटर, तो कितने रेट पे मतलब ट्रांसफर हो रहा है सीएनए, वो इंडिकेट करेगा। फिर ये सब ऊपर जो लाइन देख रहे हो वो अपना सीएनए जो प्लांट में बन के आता है, वो यहाँ पे जो 3 टैंक में जाता है उसके लिए वो लाइन है। वो वहाँ से आके सब स्टोरेज एरिया मतलब कि इस 3 टैंक में से किसी एक में जहाँ पे भी लाइन अप किया हो उसमें आता है। फिर देख रहे हो ये नाइट में जो मतलब फिक्सचर्स है, लाइटिंग फिक्सचर, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्टोरेज एरिया है प्लांट में, ग्रेटर देन 98.5 के उसके पंप है। फिर ये आइसोलेशन वाल पीजी सही सभी जगह पे देख सकते हो। फिर मैंने आपको रेफ्रिजरेंट सिस्टम का वो वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर, ये वो है। उसमें भी यूटिलिटी जो चाहिए, ये ग्रीन कलर का होता है, वो कूलिंग वाटर इनलेट आउटलेट एज ए यूटिलिटी कैन यूज इन दिस। ये भी वही है। हाँ, ये फोटो देखो, ये इंटरेस्टिंग है। ये है एयर कंप्रेसर। ये शटडाउन के टाइम का फोटो है। इसमें जो देख रहे हैं वो ब्लेड्स है, फिर यहाँ पे जो है वो स्ट्रेटर है, और ये सब है वो सीएमजी कंप्रेसर मेंटेनेंस ग्रुप का सब आदमी है। ये है शटडाउन का फोटो है। ये सरफेस कंडेंसर है जिसमें आप ये सब देख सकते हो। ये ट्यूब शीट है, ये मतलब ये सब इंडिविजुअल ट्यूब है, और वो पूरा लंबा उस तरफ का वो मतलब सिलेंडर जैसा होता है। ये हीट एक्सचेंजर, साइलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। क्लीनिंग पर्पज से खोला तब का फोटो है। फिर ये नॉक्स कंप्रेसर है, उसका मतलब ब्लेड है। तो ऊपर वो पहले देखा था, ये एयर कंप्रेसर है, ये एक्सियल एयर कंप्रेसर है, और ये रेडियल नॉक्स कंप्रेसर है। फिर ये ट्यूब बंडल है। वो आगे जो मैंने एक्सचेंजर दिखाया, इसमें इसमें इसके अंदर जो ट्यूब रहता है वो इस तरह का रहता है। ये भी ट्यूब शीट है, सल्फ्यूरिक एसिड कूलर ओपन कंडीशन में। फिर ये हमारे नाइट्रो कॉम्प्लेक्स का फोटो है। ये आप देख सकते हो, ये WNA प्लांट है, WNA 1। ये ANP प्लांट है। ये आप देख सकते हो, ये कॉलम है, उसके बाजू में स्टैक है। ये कॉलम जो ट्रे टावर है, टाइप्स ऑफ कॉलम मैंने आगे मेंशन किया। पैक टावर होता है, ट्रे टावर होता है, उसके भी अंदर जो ट्रे होता है उसमें भी टाइप होते हैं। पैक टावर में भी उसका पैकिंग के मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, रास्टिंग रिंग हो सकता है। वो तो आप कैसे हैंडल करोगे वो सब प्रोसेस डिजाइन डिसाइड करेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे एमोनिया प्लांट है। ये कॉलम जो है वो 500 सेक्शन का कॉलम है, ये फिर 200 सेक्शन। फिर आप देख सकते हो ये फ्लेयर है। जो भी अनइवन, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो भी मतलब बाय प्रोडक्ट और वो सब बनता है, जो गैसेज होता है, वो आपको सिस्टम से निकालना होता है। वो आप सीधा मतलब विदाउट ट्रीटिंग वो आप उसको एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो फ्लेयर का यूज यही होता है कि आपको किसी भी गैस को एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज करते हो तो वो विद इन अ लिमिट होना चाहिए कि ह्यूमन काइंड को कोई भी नुकसान ना हो। तो इस फ्लेयर में यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी गैसेस आते हैं यहाँ पे मतलब एनजी से मतलब बर्नर स्टार्ट ही रहता है, तो ये बर्नर में वो गैस जल जाता है, और वो फ्लेयर में फिर एटमोसफेयर में आप उसको विद द लिमिट डिस्चार्ज कर सकते हो।
फिर ये भी है, ये WN2 का मतलब कॉलम है। यहाँ पे जो अभी आपने देखा वो ये फ्लेयर था। ये मतलब ऊपर से तो पूरी मतलब कंपनी का फोटो है, आप देख सकते हो। ये है वो कूलिंग टावर है, उसके बाद में साइड स्ट्रीम फिल्टर्स है। फिर ये जो है वो मशीन हाउस है, जो कंप्रेसर हाउस जो बोलते हैं। वो किसी भी प्लांट का मतलब कंप्रेसर, आप उसको हार्ट बोल सकते हो। उसमें जो मेंटेनेंस जॉब आता है तो बहुत लंबा चलता है। ये आप देख सकते हो, कभी भी भरूच आओ तो आपको रोड से ये दोनों टावर और ये बड़ा प्रिलिंग टावर आपको दिखेगा। प्रिलिंग टावर मतलब आपको मान लेने का ये वो यूरिया प्लांट है। उसमें क्या होता है कि यूरिया जो लिक्विड रहता है, उसमें उसको ड्राइंग करने के लिए प्रिलिंग टावर यूज होता है। ऊपर से मतलब स्प्रे होता है और नीचे से कूल एयर, नेचुरल ड्राफ्ट, वो नीचे से एयर जाएगा और जो भी अपना प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मतलब कि यूरिया, वो ड्राई होके मतलब वो उसको स्प्रिंकल्स में उसका मतलब ग्राउंड सेट में आपको यूरिया मिलेगा। फिर ये जो दो स्टैक है वो बॉयलर डिपार्टमेंट की है। बॉयलर में जो प्रोसेस में बाद में जो ऐश जो होता है, उसका मतलब लिमिट रहता है कि इतनी हाइट पे ही आपको डिस्चार्ज करना आपको। तो वो यहाँ से स्टैक में से जो निकालते हैं वो ऐश का मतलब डिस्चार्ज होता है। ये प्रीलिंग टावर जो मैंने आपको आगे दिखाया, ये ऊपर का ओवरव्यू है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो है कोल कोल स्टोरेज एरिया है। जो बॉयलर में मतलब बर्निंग के लिए कॉल जो फ्यूल चाहिए वो कॉल यूज होता है। फिर यहाँ पे है वो AMP के लिए जो रॉक हम मंगवाते हैं जॉर्डन से, उसका स्टोरेज एरिया है। फिर ये ETP सेक्शन है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जो एफ्लुएंट किसी भी प्लांट से वो जनरेट होता है, वो यूं ही आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उसको इतने लिमिट, उसको पीएच और न्यूट्रिएंट्स को मतलब इतना लिमिट रखने के बाद उसको डिस्चार्ज करना होता है। तो वो ट्रीटमेंट्स वो ये ETP प्लांट करता है। मैं मेरा WNA1 प्लांट में यहाँ पे काम करता हूँ। फिर ये और इसके पीछे CNA2 प्लांट है। ये कंट्रोल रूम है, जहाँ पे ये सब पैरामीटर, ये सब प्लांट है उसके पैरामीटर वहाँ पे आपको एक DCS सिस्टम पे शो करेंगे। फिर ये फॉर्मिक एसिड प्लांट है। फिर ये आप देख रहे हो वेसल्स, वो सब स्टोरेज एरिया है। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उसका स्टोरेज इसी में होता है। फिर यहाँ पे उसके पीछे, स्टोरेज के पीछे फिलिंग एरिया है। जो भी केमिकल्स लिक्विड जो हम जो बनाते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, वो सब बाय पंप वो सब ट्रांसफर होता है यहाँ पे। और सब स्टोरेज एरिया में मतलब वो स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है और वहां से फिर से पंपिंग करके थ्रू अ टैंकर ये दूसरी कंपनी में सेल करो या वो सब है, उसके लिए भी रॉ मटेरियल वो सब यहाँ से ट्रांसपोर्टेड होता है। फिर यहाँ पे देखोगे ये कूलिंग टावर है। ये कूलिंग टावर यहाँ से ऊपर आपको सब ब्लेड्स दिख रहा होगा। फिर ये सब उसको ये पाइप रैक है, कोई भी एक लिक्विड और वो सब आपको ट्रांसफर करके कहीं दूसरे प्लांट में ले जाना हो तो ये उसका पीक है। फिर नेक्स्ट ये दूसरा एंगल है कंपनी का, ये प्रिलिंग टावर स्टैक। ये जो मैं जिस टैंक पे खड़ा हूँ जहाँ से ये फोटो लिया है, वो ऑयल स्टोरेज टैंक है। देखो ये अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम DCS सिस्टम आपको बोला, ये एक सिर्फ एक फोटो लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो देखो ये TT है मतलब टेम्परेचर ट्रांसमीटर। यहाँ से जो 32 शो करता है वो टेम्परेचर शो करता है। फिर ये LT है, LI मतलब वो ये लेवल शो करता है। ये FT ये इसका फ्लो शो करता है। ये PIC ये उसका प्रेशर शो करता है। ये सब आप इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सब आता है। और ये सब इक्विपमेंट है, जो भी आप केमिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर हो वो उसको आगे पढ़ने में आएगा। जो भी होता है वो सिंबल में शो करना होता है, मतलब ये ऐसा शो कर रहा है तो इसका मतलब कि ये एक वेसल है। फिर ये ऐसा शो कर रहा है मतलब ये एक एक्सचेंजर है, ये भी एक एक्सचेंजर है। फिर ये ऐसा शो कर रहा है मतलब ये कंप्रेसर है। ओके, थैंक यू। Hello. Uh, our webinar will end at exact 3:30. So the students are requested to ask their doubts to our expert so that he can guide you in a proper manner. We are having 5 minutes for that. Thank you, Nishan sir. Yeah.
First of all, good afternoon, sir, and thank you for giving your precious time to us. Sir, my question is that how can a student and an engineer can select location for the industry? Sorry, can you repeat the question? Sir, how an engineer can select an location for an industry in which he or she wants to work? ओके, मतलब किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन मतलब आपको सिलेक्ट करना हो और किसी भी इंडस्ट्री में काम करना हो किसी भी इंजीनियर को, तो वो जो इंडस्ट्री है तो वो अपना लोकेशन अपना इंडस्ट्री का मतलब वो मार्केट बेस्ड होता है, मार्केट बेस्ड, मटेरियल सप्लाई बेस्ड, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, ये सब जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो उस जगह पे एनी इंडस्ट्री मतलब कि वो इंडस्ट्री वहां पे हो सकता है। देखो अभी जीएनएफसी का लोकेशन देखो, ये नेशनल हाईवे बाजू से ही जा रहा है, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन, फिर यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, मेनली जीएनएफसी का रॉ मटेरियल तो एनवायरमेंट में से ही है। देखो तो एयर है वो हमारा रॉ मटेरियल है, और दूसरा जो रॉ मटेरियल आता है वो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब दहेज यहाँ पे नजदीक में है, तो दहेज में भी कितनी केमिकल इंडस्ट्री है, तो जो भी केमिकल्स यहाँ पे हमारी कंपनी में एज अ रॉ मटेरियल है वो विद दिस ट्रांसपोर्टेशन वी कैन हैव इट। सो मार्केट है, मटेरियल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, और ये सब फैक्टर रहता है कि भी किसी भी इंडस्ट्री को लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए। Sir, thank you, sir. ओके, Any other question that anyone want to ask? Yes, sir. Yeah, fast. Good afternoon, sir. Sir, my question is that what is the role of mechanical engineer in process industries? ओके, इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री एज आई मेंशनड कि जो भी इक्विपमेंट रहते हैं उसका मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, जो भी रोटेटरी इक्विपमेंट्स रहते हैं उसका भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, तो वो सब मेंटेनेंस करने के लिए वो मैकेनिकल इंजीनियर किसी भी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड रहता है। और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वेरी वर्सटाइल field, I can say, not in a process industry, in every industry mechanical engineer always required. Okay, so in a process industry अभी मैंने आगे भी मेंशन किया कि कहाँ कहाँ पे उसका स्कोप रहता है, कोई भी इक्विपमेंट होता है उसके मेंटेनेंस के लिए। फिर यहाँ पे ही देखो अभी मैं वर्क परमिट किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर को देता हूँ, तो कोई भी हो मतलब फ्लैंज जॉइंट मतलब लीकेजेस वगैरह को वर्क करने के लिए वो मैकेनिकल इंजीनियर ही रहता है। ओके, Okay, anyone else want to ask something else? Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Fast. Sir, so my question is, sir, for process engineering, what is more preferable for the studies in India or in abroad? yeah. As a engineer, ये तो जनरल क्वेश्चन है, मैं सभी के लिए ये कह सकता हूँ कि मतलब फर्दर स्टडीज आप किस यूनिवर्सिटी से काम करते हैं उससे आपका कोई नॉलेज मतलब जज नहीं होता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि किसी भी और मतलब सर्विस ग्रुप के साथ आपका बिहेवियर भी मैटर करता है। और आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे पढ़ना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई कैन से कि आपको यहाँ पे किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो तो वो आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप यहाँ रह सकते हो, और आपको आगे अपना मतलब करियर जो बिल्डअप करना है तो आप आगे भी जा सकते हो। मैं मेरे फ्रेंड्स की बात करूँ तो वो पारी यूनिवर्सिटी से ही मैकेनिकल के 2017 बैच में, और मेरे 10 फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप था, तो इनमें से मैं सबसे पहले प्लेस हुआ था जीएनएफ से। सो आई हैव अ जॉब। सो मैं कह सकता हूँ कि आपको जॉब मिल जाता है और आप सेटिस्फाई हो तो आप इंडिया में रह सकते हो और अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। पर आपका एम्बिशंस कुछ ज्यादा है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब इंडिया में कुछ आगे पढ़ना चाहते हो इंडिया में कर सकते हो, और आपको बाहर जाके कुछ करना है मतलब वैल्यू तो बाहर ज्यादा ही रहता है। अभी आप देख सकते हो कि कनाडा यूएसए उसका क्रेज काफी बढ़ गया है बच्चों में, तो वो भी सही है। मतलब वो तो अभी पर्सनल पर्सपेक्टिव रहता है, फिर आपके मतलब देख सकते हो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Good afternoon, sir.
Sir, I have one question that during the shutdown period, how the duties are performed by the process engineers? यस, शटडाउन पीरियड, ओके। शटडाउन पीरियड में देख सकते हो क्या प्लांट बंद होता है, सभी इक्विपमेंट मतलब खाली होते हैं, मतलब पर्चिंग। पर्चिंग एक वर्ड आई कैन से कि आपको जितने भी हैजार्डस गैस आपके प्लांट में अवेलेबल है उसको सबको निकाल के उसको ट्रीट करके, मतलब पूरा प्लांट है वो केमिकल फ्री करना होता है, किसी भी केमिकल के साथ आप डील करते हो। तो मतलब शटडाउन पीरियड में आपके जॉब रहते हैं, कोई किसी भी वेल्ड जॉइंट में मतलब ऑनलाइन आप जॉब नहीं कर सकते हो, तो शटडाउन में आपको वो जॉब करना है, उसको हॉट वर्क लेना है, तो चालू प्लांट में तो अंदर फ्लूइड रहता है तो आप वो जॉब नहीं कर सकते। तो एज अ प्रोसेस इंजीनियर इन अ शटडाउन आपको क्या करना है कि ये सब जो जॉब रहते हैं वो आपको हैंड ओवर करने हैं मेंटेनेंस जॉब, और सर्विस ग्रुप वाले को ये जॉब मेंटेन करना मतलब देना है। तो आपका रोल क्या रहता है कि अंदर आप वर्क परमिट देते हो, मैंने आपको भी आगे भी डिस्कस किया, जो वर्क परमिट देता है, आप वर्क परमिट जब किसी को भी देते हो मतलब सर्विस ग्रुप को, तो अंदर कुछ भी केमिकल या हैजार्ड नहीं होना चाहिए, आप उसको ऑथराइज करते हो काम करने के लिए। एज अ प्रोसेस इंजीनियर you are giving authority to do work at that place. So as a process engineer आपको ये सब ध्यान रखना होता है प्लांट में। और एज अ प्रोसेस इंजीनियर शटडाउन लेना भी इतना इजी नहीं होता, आपको कितने पैरामीटर्स वो मेंटेन करने होते हैं शटडाउन लेने से पहले। फिर स्टार्टअप में भी उतने पैरामीटर्स, उसका सबका एसओपी रहता है, कोई भी प्लांट का कोई भी मैनुअल रहता है उसमें सब मेंशन किया होता है क्या पैरामीटर को आपको किस तरह से मेंटेन करना है, रनिंग प्लांट में भी किस पैरामीटर को कितने पे मेंटेन करना होता है। वो तो आप जब प्रोसेस इंडस्ट्री में आते हो तो अपने आप रूटीन में आ जाता है कि क्या कैसे करोगे, कौन सा पैरामीटर चेंज करने के मैं क्या करूँगा। तो शटडाउन के लिए तो मैंने आपको ये पहले मतलब डिस्क्राइब किया, इस तरह से मतलब माहौल रहता है केमिकल इंडस्ट्री में। Okay, okay. So Yes, sir. now last 2 minutes are remaining. So I think the doubts of the students are already solved, and I am giving the vote of thanks. I am very thankful to our guest speaker. That is our Tarang sir has imparted very tremendous job, tremendous knowledge of his field. How the students can work practically, their approach, their duties, their roles and performances. I hope that he is going to come in our college, in our university, as an expert talk in offline mode also. Okay, so I'm welcoming him on the behalf of this university again. I'm very much thankful to him. I'm very much thankful to our president sir. I'm very much thankful to our HOD sir, dean sir, principal sir, vice principal sir, and all the students and all the faculty members who have visited this Facebook live streaming. And I am thankful to all of you also for giving me such an best timing, that is knowledge worthy opportunity, what I can call, right? So thanks to you sir again and again, and wish to see you again and again in this campus. It is always welcoming for you. Tarang sir. I hope I satisfy you all. Yeah, very much to the best extent you did your job. Okay. It was totally tremendous. It was totally amazing, right? Okay. So yeah, thank you so much. Thanks a lot for such a great participation, and thanks to Amritans, Devashis, Chirag, and Ravi Raj too. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much. Yeah.